کوئی ایسا لائف میں موقع سوچیں کہ بڑے خوش تھے اور اچانک سے کوئی کانوں میں آواز پڑی یا کوئی بات ایسی سننے کو مل گئی یا کوئی ایسی سچویشن دیکھ لی کہ آپ اچانک سے پریشان ہو گئے. کبھی ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا سفر گزر رہا ہوتا ہے, بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے, یہ جناب ماحول چل رہا ہے گپ شپ کا, مطلب مل کے سفر کر رہا ہے, کسی ٹرپ پہ جا رہا ہے اور اچانک سے کسی نے جناب کہہ کر دیا سارا تیس نیس کر دیا ٹھیک ہے, اور مزے کی بات کہ اس نے ایک دفعہ فکر منہ کر کے اور پھر اس کا دل نہ بھرا, اس نے چھوڑ اگلی سیٹ پہ بھی میں پچھلی سیٹ والوں کو کہا ہوگا اور پچھلی سیٹ والوں کی طرف دیکھ کے اس طرح صاف کر رہا ہوں. آپ بہت خوش تھے اور اچانک پریشان ہو گئے کسی بھی ریزن کی وجہ سے. اب خوش ہیں اور میں نے ڈانٹ دیا بڑی محفل میں, آپ پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ بہت خوش بیٹھے تھے, آپ ہنس کے لڑکے کے ساتھ بات کر رہے تھے, اچانک سے ٹیچر آیا چپ چپ کھڑو, آپ پھر بھی ہنستے رہیں گے, ایسا نہیں ہوتا, پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ایسی سچویشن لائف میں آتی ہے. یہ جسٹ لائک یہ اس طرح سے ہے کہ بٹن ہوتا ہے نا, تو بٹن آپ اس کو آن کریں, ادھر ہی کر, یہ آن ہو گیا نا. ٹھیک ہے, یہ آپ خوش ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ وہاب صاحب نے آپ کو پریشان کر دیا, 2 بندے ان سے مزہ آئے گا نا. آسم کدھر ہے, آسم آپ نے خوش کرنا ہے, یہ پریشان یہ انہوں نے خوش کر دیا نا, یار ہے ریلیکس رہا, ٹینشن نہ لیا کر. آسم آ گئے, بکواس بند. ٹھیک ہے, تو پریشان ہو گیا, بالکل سنجیدگی چھا گئی. آسم چلا گیا اور وہاب آ گیا. وہاب نے پھر آپ کو تسلیاں دی اور آپ کا جناب مائنڈ فریش کر دیا, آپ خوش ہو گئے. کیا بات ہے, زبردست. اور پھر آسم اچانک سے انٹری لیتا ہے اور آسم کی انٹری کے ساتھ ہی آپ پریشان. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ آپ کی خوشی کس کے کنٹرول میں ہے جی؟ دوسرے بندے کے یا آسم کے کنٹرول میں. فی الحال اگر دیکھی جائے اس ایگزامپل میں, تو یہ جب چاہے آپ کو کیا کر دیتا ہے, پریشان کر دیتا ہے. اور وہاں پھر آئے گا ایک لاسٹ ٹائم, وہاں نے کہا یار ٹینشن نہ لیا کر, یار ہوتا رہتا ہے, ہر بندے کی لائف میں ٹینشن ہے, میری لائف میں بھی بڑی ٹینشن ہے, لیکن دیکھ میں مسکرا رہا ہوں. تیری لائف میں بھی ٹینشن ہے, تیری زندگی میں آسم نازل ہوئے, پریشان نہ ہو, یہ وقتی ہے, ختم ہو جائے گا. لیکن آسم صاحب آتے ہیں پھر وقتی نہیں ہے, میں پیو ادھر کھڑا ہوں تیرا, پھر سانسیں چل رہی ہے, میں تجھے ذلیل کر کے چھوڑوں گا. تو اس نے پھر پریشان کیا. تو یہ سلسلہ جو چلتا ہے یہ کیا ہے کہ خوشی کس کے ہاتھ میں ہے, دوسرے بندے کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو دوسرا بندہ ہے نا, یہ کبھی پریشان کر دیتا ہے. اگر آپ نے اپنے ایموشنز, جس طرح یہ تاریں جڑی ہوئی ہیں نا, اس بلب کی تاریں جڑی ہوئی ہیں بٹن کے ساتھ, اگر آپ نے ایموشن جوڑے ہوئے ہیں کسی بندے کے ساتھ, وہ جب خوش ہوگا تو آپ خوش رہیں گے, وہ پریشان ہوگا تو آپ بھی پریشان ہوں گے. یہ بات بہت گہری تھی, کچھ بندے پک کر پائے ہوں گے. تو کیا ہوا کہ آپ نے ایموشن جوڑے ہوئے ان کے ساتھ, اب ایموشن اس کے ساتھ جڑ گئے, اس کی پریشانی کے ساتھ آپ پریشان ہیں اور اس کے خوش رہنے کے ساتھ آپ خوش ہیں. اس طرح یہ تاریں جڑی ہوئی ہیں بٹن کے ساتھ, بٹن کے آن ہونے پہ بلب خوش ہو جاتا ہے, آف ہونے پہ بلب پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر یہ ایموشن بہت سارے بندوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں, پھر میرے جان تمہاری زندگی زیادہ پریشانی میں گزرنے والی ہے. بیٹھے شاہ ان کے لیے کلیپنگ کر لیں گے. ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ بھی جڑے ہوتے ہیں. آپ کیا ہوا, آپ کے جیب میں موبائل ہے اور موبائل جناب کوئی بندہ آیا, پسٹل رکھا, اس نے کہا موبائل نکال, اب موبائل لے گیا, آپ زندہ بچ گیا, آپ کی شکل دیکھنے والی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, منہ پہ جو 12 نہیں بلکہ 14-15 بچ جائیں گے, وہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت سارے وہ بندے جان سکتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہماری ادھر میڈم تھی ایک, ان کا جناب اس طرح سے ہو گیا, آئی فون چوری ہو گیا. تو وہ اب اس کے ایموشنز اس کے ساتھ نہیں تھے, تو وہ بڑی پھر بھی ریلیکس رہی. لیکن اگر ایموشنز ہوں تو پھر بڑے مسئلے رہتے ہیں. اچھا, کچھ ایموشنز ہوتے ہیں, کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. another ٹاپک ہے. اگر فرض کر رہے ہیں یہ جناب پین ہے, میرے اس کے ساتھ ایموشنز ہیں, یار مجھے سر نہیں دیا, تو مثال لے لیتے, اب ایموشنز ہیں, یہ گمے گا میں پریشان ہو جاؤں گا, یار کتنا قیمتی پین تھا, سر نہیں دیا تھا.
अब इसकी परेशानी से मेरा मूड ऑफ हो गया, क्यों, मेरे इमोशंस इसके साथ जुड़े, और ये मिलेगा तो मैं खुश हुई, शुक्र है मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गुम जाएगा तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, मालिक 2 नफल पढ़ूँगा हाजत के, मिल जाए बस, ठीक है, अम्मी से दुआ कराऊँगा और दुआएं पढ़ूँगा ढूंढते हुए, तो लेकिन जब मिल जाएगा तो फिर खुश। क्या हुआ, इसके साथ मेरी परेशानी भी जुड़ गई, बलब ऑफ, और फिर ऑन, खुश भी हो गया। तो इसके साथ जुड़ गए ना इमोशन। अगर तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर मसला ज़्यादा है। हम सर के पास थे तो मुझे सही से याद है, सर ने बुलाया स्टेज पे और मुझे वो पाकिस्तान का झंडा लगाया छोटा सा, ये सर ने, ये देखें सर को भी लगा हुआ है, तो सर पाकिस्तान का झंडा जनाब लगाते थे, तो सर ने लगाया झंडा एंड देन मुझे थपकी दी और कहा बैठ से शाबाश। मैं मेरा एक टेस्ट था, फिज़िकल टेस्ट था, रनिंग करनी थी, बहुत लंबी रनिंग थी, तो मैं बड़ा खुश था कि सर का झंडा जब तक मेरे साथ है ना, कोई माई का लाल मुझे रनिंग में नहीं गिरा था। तो हुआ ये कि मैं शॉपिंग करने गया, शॉपिंग में मैंने जॉकर ख़रीदने थे और किट ख़रीदनी थी, ट्राउज़र शर्ट, तो उस दौरानी में मुझसे वो झंडा अलग लगा हुआ था, कहीं पर वो करते करते लेफ़्ट राइट होते वो गिर गया। मैं वापस आया, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैं तो गया, मुझसे तो सुबह रनिंग है और मुझे तो नहीं जीत सकता, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, और मैं इतना परेशान। जब तक वो साथ था मैं बड़ा खुश, जब वो गुमा मैं परेशान, इंतहाई परेशान। मैंने सर को मैसेज किया, सर किसी का रिप्लाई नहीं करते, किसी का भी नहीं रिप्लाई करते, स्पेशली जो करंट स्टूडेंट्स होते थे, सर मसरूफ़ इतने ज़्यादा होते थे, अब इतने स्टूडेंट्स हैं किस किस को रिस्पॉन्स करेंगे। तो वो जनाब उनकी बाकी भी ढेर सारी मसरूफियत रहती थी, तो सर का रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो मैंने बार बार सर को मैसेज लिखा और मैसेज में मैंने सर को मसला बताया कि सर मैं समझ रहा था कि सुबह मैं जीत जाऊंगा, बट अब मुझे नहीं लगता कि मैं जीत सकता। तो सर ने मुझे रिप्लाई किया और मैंने वो रिप्लाई में सर ने लिखा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और कल रनिंग जीत के आना। और लास्ट पे स्पेस देख अगली लाइन पे लिखा हुआ था मंजिल का दिफा करना, और मैंने कहा मंजिल का दिफा करना है, ऐसी की तैसी, और बस सर ने कह दिया अब बात ख़त्म हो गई, अब मंजिल का दिफा करना ही करना। मैं नमाज़ पढ़ने गया, तो नमाज़ पढ़ते हुए अब मैं पहली रो में खड़ा हुआ था, जमात हो रही थी, और मेरा तवज्जो जो है ना सर के मैसेज की तरफ, मंजिल का दिफा करना, सुबह जाके मालिक मंजिल का दिफा करना। तो ज़हन में अचानक अल्लाह ने डाला कि तू उस झंडे को इसलिए अहम समझ रहा था कि उसको सर के हाथ लगे हुए थे, वो इसलिए ख़ास था कि वो मेरे पास होगा तो मैं जंग लड़ूंगा और जीत जाऊँगा, और तुझे तो सर के हाथ लगे हुए हैं, थपकी लगी हुई है, तू भी तो सर के हाथ लगे हुए हैं, तू सारे ही सर का वो सारा गिफ्ट बना हुआ है, तू नहीं हारेगा। सुबह मैं गया जनाब और भरपूर रनिंग की और जीत के आ गए, वापस आए, सर ने देखा, सर बड़े खुश, मैं बड़ा खुश। तो क्या था, उस झंडे के साथ इमोशन जुड़ गए थे। फिर सर ने क्या किया, उन इमोशंस को काटा वहाँ से, जो खो गया कोई मसला नहीं, नया झंडा दूंगा, एंड देन इमोशंस को जोड़ दिया सर ने उस मैसेज के साथ। अब मेरा मैसेज के साथ जुड़ गया इमोशन, उस मैसेज को मैंने बड़ा अरसा संभाले रखा था। मेरा मोबाइल चेंज होता था ना, तो मैं पहले वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता था, देन मोबाइल किसी को भेजता था, बचपन था ना, मोबाइल भेजते रहते थे, तो मैसेज में पहले ट्रांसफ़र करता था। तो काफ़ी ये सिलसिला चलता रहा, काफ़ी अरसा चलता रहा। फिर मैंने, क्योंकि फिर सर के बड़े क्लोज हो गया, फिर सर से हज़ारों चीज़ें ली मैंने, सर से हज़ारों चीज़ें दी मैंने, तो वो गिव एंड टेक काफ़ी रहा। तो फिर मैंने कहा चलो मैसेज, फिर सर के बहुत सारे मैसेज, फिर लंबी लंबी चैट्स मेरे पास होती थी, क्योंकि मैं ऑफिस में होता था, सर के साथ अक्सर कन्वर्सेशन होती थी, तो बहुत सारे मैसेजेस होते थे मेरे पास। तो वो फिर आगे पीछे हो गया, फिर मुझे उसके साथ भी इमोशंस कट हो गया, फिर मेरे सर के साथ जुड़ गए डायरेक्टली। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों के साथ इमोशंस जोड़ेंगे ना, जितने ज़्यादा जुड़े होंगे उतने आप परेशान रहेंगे ये चीज़ों के साथ, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन लिखें, अपनी ज़िंदगी में खुशी का या दुखों का और परेशानियों का वास्ता, वास्ता लिख के ना कॉमे में लिख लें लिंक, वास्ता कॉमे में लिंक, किसी को ना दें या किसी के साथ ना जोड़ें, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज़ हो, किसी भी इंसान या चीज़ों के साथ इमोशंस ना जोड़ें और इसका स्विच सिर्फ अपने पास रखें, ठीक है जी।
आइंदा कोई बंदा आपको परेशान कर देना तो समझ लो आपको स्विच उसके पास था, उसने परेशान कर दिया। और किसी ने आपको खुश कर दिया ना, फिर सोच उसके पास, ये सोच आपके पास हो, कोई चीज़ घूमी है, आप डिसाइड करें मुझे इस पर क्या एक्शन करना है। कोई हंसाए तो आप डिसाइड करें हाँ हंसना चाहिए, तो रुलाए डिसाइड करें रोना चाहिए कि नहीं। वो परेशान हो रहा है, वो उसकी परेशानी है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप उसकी परेशानी का हल करें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक तो वो परेशान है, ऊपर से आप परेशान, हाँ वो परेशान है, ठीक है, उसका चलो मसला वो होगा, कोई परेशानी होगी, आपने उसके साथ लिंक नहीं जोड़ना अपना। आप उसके मसले का हल कर सकते हैं, करें, नहीं कर सकते उसी परेशानी को देख के आप हाँ परेशान, वो मुंह बना के बैठे हुए, वो आप क्यों परेशान हो, यार मेरे साथ ये मसला है, आप उसके साथ भी खड़े हो गए, आप मुंह बना खड़े वो मुंह बना खड़ा था, आप भी साथ मुंह बना खड़े हो गए, अजीब लोग हो यार। 4-5 और आएंगे, वो भी मुंह बना खड़े हो गए, लंबी लाइन मिलती जा रही है, पागल हो। वही वो परेशान है, उसकी परेशानी का हल करो, ख़त्म कहानी। नहीं हल कर सकते, सब्र दो, से दिल तसल्ली दो, वाह वाला काम करो, तो उसे आसानी की कोशिश करो, रिलैक्स करने की कोशिश करो। हमारा दोस्त था, अल्लाह माफ़ करे मुझे, बस तबीयत ही ऐसी है, तो उसकी जनाब घर में इतना सीरियस इशू हुआ और उसके वाले साहब फौत हो गए थे, इतना सीरियस इशू। अब वो परेशान था शदीद लेवल का। मेरे जहन ज़्यादा देर दोस्तों मैंने काबू में नहीं रहता, मैं थोड़ा सा बेकाबू हो जाता है, थोड़ी देर बाद शरारतें आना शुरू हो जाती, तो उसके साथ अब मैंने शरारतें थोड़ी मैंने उसके मिजाज समझ रखा था, अभी तपेगा नहीं। अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, डिप्रेशन में रह रहा है कि अब ज़्यादा रहेगा तो हमें डिप्रेस हो जाएगा। मैं उसको खाने शाने के लिए खाने ले गया और अंदर मैं कुछ ऐसी बातें करता रहेगा, हंस के अभी डेड बॉडी घर पड़ी हुई कह के लगा के हंस रहा था कसम से। मुझे भी वो लड़का याद है वैसे ही तरह। फिर एक और लड़का था, तो उसकी वालदा फौत हो गई, तो अब दिन उसके साथ गुजरा, रात को अब मैंने सोचा कि अब इसे रिलैक्स करना चाहिए। मैंने कहा चल यार थोड़ा सा आगे तक हो, क्या आगे तक गया जनाब, उसके उधर 4-5 हमसे साथ आके उसको भूल ही गया कि घर में जनाब इतना बड़ा सान है, वो इतना रिलैक्स हो गया। जब वो रिलैक्स हो गया तो उसने घर के सारे मसले बड़े संभाल लिए। अब मुझे पता था वो घर का बड़ा है, वो परेशान होगा तो बस रोमियो बन के साइड पड़ा रहेगा, मसले हल कौन करेगा? वो रिलैक्स रहेगा तो मसलों को अच्छे से हल कर सकेगा। मसले तो हल करने हैं ना, मसले तो उधर के उधर हैं। आप परेशान हो के हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हल कर सकते हैं, या आप खुश हो के रिलैक्स हो के हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप रिलैक्स हो के हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हल कर सकते हैं। बस इतनी सी बात करनी थी कि आप सोच हमेशा पास रखें अपने, ये नहीं कोई आपको डांटे, टीचर आया क्लास में उसने आपको डांटा और आप 2 घंटे तक रोते रहे और कल भी आके रोती रहे, और लाना तो फिर ऐसी जिंदगी पे। सोच अपने पास रखें, ठीक है डांटे हैं उस टाइम थोड़ा सा उनके सामने सीरियस हो जाए, चलो रिलैक्स, ठीक है। और अम्मी अबू आगे डांटे हैं, मेरी मिस्टेक, जैसे ही देखा अम्मी निकल रही है निकल गई, रिलैक्स। मैं ये कह रहा हूँ परेशान ना हो, वो मसले का हल ना करना है। मैं मसले का हल तो पहले भी कह रहा था, वो जिस चीज़ की तरफ से डांट गए हैं आपने वो रिपीट नहीं करनी है, मैं दोबारा रिपीट करके बैठे हूँ, फिर सिर्फ डांट नहीं जाएंगे, फिर अच्छी खासी समझा के जाएंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी।